Good morning students and welcome in today's lecture. Today we will start lesson number 3, geographies, physiography and drainage system. First I will explain about what do you mean by physiography. जैसे in plain word अगर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स जैसे अपने बॉडी के बॉडी पार्ट्स फिजिकल फीचर्स होते हैं, हैंड, लेग बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्टमक, आईज, तो जैसे वैसे ही लैंड पोर्शन के फिजियोग्राफ होते हैं, यानी कहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटो, ऑल दैट. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स वाटर बॉडीज. हियर we are studying comparative study of both India and Brazil. You keep in mind that some similarities are there, and when I am explaining it in video, at that time you have to listen it carefully, because all the definitions, see, textbook is with you, you have to read the textbook line by line, but with the animation I am explaining you the whole lesson. So let's start. और जो पॉइंट है वो आपने लिख लेना है. फर्स्ट आई here page number 16, there is a explanation about geographical explanation about India, and afterward Brazil. In next video I will explain you about Brazil. First, see, this is a color map. Types of map you already studied in last year, and in India's map you are watching some mountains, desert, plateaus, coastal area. So broadly both the countries are divided into 5 categories according to physiograph. Understood? So in your map book, textbook, you have a map of India. Now here write down this point in your classwork also. By the color I am telling you, first physiograph is northern mountain. You call it Himalaya. Second, northern plain. Northern plain. Third, desert. That is marked with the numbers in the map. जैसे आप लोगों को कलर के हिसाब से वो यहाँ पे मार्क किया है. First number, northern mountains. The whole is called the Himalaya. Greater Himalaya is there. Then second part is northern plain, that is shown in with the green color. Then the desert. Then fourth, peninsula, plateau region. Fourth number, Deccan plateau इसको बोलते हैं हम लोग. 5, coastal area. This coastal area is from two sides, east and west. And sixth, island. You know very well, the neighboring land portion of India are the part of India. And last lesson में मैंने आपको बताया है कि northern southernmost point is Indira Point, that is on island. So these are the 6 points, or the whole India is divided into 6 categories according to the physiograph. And what about the sea? राइट साइड में आपको दिखाई देता है बे ऑफ बंगाल, एंड लेफ्ट में अरेबियन सी. दीज आर द नेबरिंग एंड कोस्टल एरिया ड्यू टू दैट. एंड नॉर्दर्न में आपको लैंड पोर्शन है, कंट्रीज है, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ऑल दैट. सो राइट दिस ऑल 6 पॉइंट्स इन योर क्लास वर्क एंड कीप इन माइंड that India have a 6 types. First we will see about Himalaya, that is already given in your textbook, the information on page number 16. See, have you watching this color? Himalaya is covered with snow cap. See, the Himalaya is one of the young fold mountain in the world. See, this is the information, write all it in your classwork. It's very important. See, Himalaya is one of the young fold mountain in the world. What do you mean by young fold mountain? Means among all the mountain in the world, Himalaya is young. जैसे अगर 3-4 बहनें होती है तो सबसे छोटे को यंग बोलते हैं क्योंकि वो छोटा होता है. वैसे माउंटेन्स में जितने भी माउंटेन्स है उसमें हिमालय यानी बाद में क्रिएट हुआ है, इसलिए उसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं. अंडरस्टूड?
and it is fold mountains. In India, it extend from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश. आप मैप देख सकते हो और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगी कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक वो एक्सटेंड है, स्प्रेड है. The Himalaya is not a single mountain range. Keep in mind that this mountain is not continuously. Southernmost is called Shivalik. See, there are many parallel ranges in system. जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूस नहीं है. दैट इज डिवाइडेड इनटू 4. साउदर्न मोस्ट को शिवालिक बोलते हैं, देन लेजर, देन ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय. अगर हाइट के हिसाब से बोलेंगे तो फर्स्ट द हाइटेस्ट मीन्स हिमालय का सबसे ऊंचा जो है सी लेवल से बहुत ऊपर, तो उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन. उससे स्मॉलर ग्रेटर हिमालय और उससे छोटे लेजर हिमालय एंड शिवालिक वो जो है सबसे साउथर्न पॉइंट में. तो पैरेलल लाइंस में हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, देन लेजर हिमालय एंड शिवालिक. देखो ट्रांस हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट, इसको वहाँ पे ट्रांस हिमालय, और ऐसे वो आपको मैप में देख सकते हैं आप लोग. और पैरेलल लाइन ऐसे लाइन से देखो. देन बीच में का ग्रेटर हिमालय, थर्ड वन लेजर हिमालय हाइट के हिसाब से, फर्स्ट वन ट्रांस हिमालय, देन फोर्थ वन इज शिवालिक. शिवालिक आर नॉट सो हाई मीन्स स्मॉल है. नाउ ये तो हो गई पैरेलल लाइन, लेकिन द माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर हिमालय जो जम्मू कश्मीर है, उसके बीच में का सेंट्रल हिमालय एंड देन ईस्टर्न हिमालय, जो यानी ऐसे. अभी आपने लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन में देखना है आपको. देखो पैरेलल लाइन में देखा, अभी वर्टिकल में वेस्टर्न हिमालय जो वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में ईस्टर्न हिमालय और बीच में का सेंट्रल हिमालय. तो ऐसे आप पैरेलल लाइन में 4 इस कैटेगरीज में डिवाइड होता है, और वर्टिकल लाइन में 3 टाइप्स में होता है. ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक. हैव यू अंडरस्टूड? ये ऐसे है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉर्दर्न प्लेन, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है. देखो दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ. नॉर्थ यानी ऊपर का पार्ट है, आफ्टर हिमालय के बाद जो स्टार्ट होता है, और ये डेक्कन प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में. हिमालय एंड डेक्कन प्लेट्यू के बीच में जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन. अंडरस्टूड? इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया. कैसे वो लो लाइंग है? दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ alluvial soil, and you know very well alluvial soil because big river of India Ganga is and its tributaries are there, so that land portion is fertile there. कहाँ पे fertile है आपको पता होना चाहिए, northern plain पे. Then consist of river like the Ganga and the Brahmaputra rivers, I told you. So Ganga Brahmaputra river system comprises of your सुंदरबन डेल्टा. फिगर 3.3 टेक्स्ट बुक में देखो आप, यहाँ पे भी मैंने दिया है डेल्टा, यानी ऑल द डिपॉजिट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. अभी देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सब है, आपने ऐसे पॉइंट्स लिखना है, अंडरस्टूड करना है कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरबन. और डेल्टा मीन्स व्हाट? ऑल द वाटर बॉडीज, रिवर्स, देयर सेडिमेंट्स, जितने भी सेडिमेंट वो उसके साथ में लाती है, सॉइल, मिनरल्स, ऑल दैट. व्हेन शी एंटर्ड इन द ओशन और माउंटेन, सॉरी ओशन और सी, वो वहाँ पे जाते हैं, तो जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, ऑन द कोस्टल एरिया, और उससे जो फॉर्म होता है वो डेल्टा है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज नोन एज अ थर्ड डेजर्ट. यहाँ पे देखो थर्ड डेजर्ट है वेस्टर्न पार्ट में.
एंड ईस्टर्न आपको पता होना चाहिए, राइट साइड में ईस्टर्न पार्ट होता है, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज नोन एज थर्ड डेजर्ट और मरुस्थली. उसको अनदर नेम है मरुस्थली. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला. व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? यहाँ पे देखो आप, इट इज नॉट जस्ट लाइक द माउंटेन. पेनिनसुला, द एरिया lying to the south of North Indian plain and tapering toward the India. ऐसे छोटा सा नीचे त्याला आपण निमुळता म्हणतो, टॅपरिंग होते जा रहा है टुवर्ड इंडियन ओशन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला. यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन के बाद जो होता है. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटोज एंड हिल रेंजेस. यहाँ पे क्या है, मेनी प्लेटोज है एंड हिल रेंजेस है. द अरावली इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर. यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन मैंने आपको हिमालय बताया, एंड ओल्डेस्ट अरावली. यहाँ पे देखो, अरावली इज इन द नॉर्थ इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटोज बॉर्डरिंग द प्लेन्स. यानी ये भी प्लेटोज की सीरीज है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, सीरीज है, एक के बाद एक, एक के बाद एक. देन विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट. ये देखो विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस एंड द हिल रेंजेस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के तरफ दोनों हिल्स है. तो दिस इज द सी, यहाँ पे देखा है मैंने डेक्कन प्लेटो, अरावली माउंटेन, विंध्या एंड सातपुड़ा. इस लेसन से आपको मैप्स चाहिए, आपने मैप्स लेके रखना है. जो मैं आपको बोलने वाली हूँ वो मैप फिलअप कर रहा है. अंडरस्टूड. तब भी आपको पता चलता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, मैप फिलअपिंग में अगर आता है तो इंडिया का हिमालय, देन देयर ट्राइब्स, देन कोस्टल प्लेन. देखो कोस्टल प्लेन आपको पता है, कोस्टल एरिया. इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर. अभी ये देखो, ये माइंड में रखना है फिलिंग द ब्लैंक के लिए. जीके बेस्ड भी क्वेश्चन है. देखो ये जहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सब कोस्ट लाइन एरिया है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से. तो कितना है ये, 7,500 किलोमीटर. और ब्राज़ील का भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, ब्राज़ील का 7,400 किलोमीटर है. तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इसमें. इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. ये देखो पेनिनसुला पार्ट है, आपने देखा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है. ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट लैंड पोर्शन से डिवाइडेड है, लेकिन फ्रॉम थ्री साइड वी आर कंट्री इज गिफ्टेड विथ कोस्ट लाइन. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. वेस्ट की तरफ अरेबियन सी. रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट. ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इट इज़ द गिव रीजन क्वेश्चन. देखो रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, यहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है ना, दे आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट. छोटी होती है, स्विफ्ट होती है. द रिवर्स इन द वेस्टर्न घाट फॉर्म ईस्टरीज एंड नॉट डेल्टा. डेल्टा नहीं फॉर्म करते हैं. वेस्टर्न की, ईस्टर्न की तरफ डेल्टा फॉर्म होता है, वेस्टर्न की तरफ डेल्टा फॉर्म नहीं होता है. क्यों नहीं होता है मैं आपको बताती हूँ. द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स लाइक बे ऑफ बंगाल एंड हैज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स. ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है कि बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है. जो रिवर्स है वो जितना सेडिमेंट्स एंड मटेरियल्स लाते हैं वो सब कोस्टल पे फॉर्म करते हैं. इसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा क्रिएट होता है. और डेल्टा होने की वजह से जो कोस्ट है वहाँ पे शिप्स यानी कोस्ट तक नहीं आ सकती, बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड. ये रीज़न है उसका. लैंड का स्लोप है वो जेंटल है. रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटी. उनकी स्पीड जो है, वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ दैट रिवर इज़ वेरी लो, कम होती है, स्पीडी नहीं होती है. एंड डिपोजिशन टू द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट. तो इसकी वजह से क्या होता है, ईस्टर्न साइड में डिपोजिशन जो है वो कोस्ट पे हो जाता है. अभी वेस्टर्न की तरफ क्या होता है, दे आर शॉर्ट, ऑल द मटेरियल्स इज ब्रॉड बाय द रिवर्स, इट इज ब्रॉडली वेंट टू ओशन. तो
ये ध्यान में रखना है कि ईस्टर्न साइड में डेल्टा फॉर्म होता है, एज अ रिजल्ट डेल्टा आर फॉर्म अलोंग दिस कोस्ट, और वेस्टर्न साइड में ईस्टरीज फॉर्म होती है। समझ में आया डेल्टा एंड ईस्टरीज का? क्योंकि ईस्टरीज स्पीड, रिवर का स्पीड देखो, बिकॉज ऑफ द डेंटल स्लोप ऑफ द लैंड पोर्शन भी स्लोप होता है, रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटी स्पीड में, इसलिए वहाँ पे सेडिमेंट से वो कोस्ट पे ही हो जाती है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज आइलैंड। यू नो वेरी वेल, सी इन द फिगर में आपको दिखा रही हूँ मैं, लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी। कहाँ पे है लक्षद्वीप? इन अरेबियन सी। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉल? आप मैप में देखो, लक्षद्वीप ईस्टर्न वेस्ट की तरफ। एटॉल मीन्स मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड्स मेड अप विथ कोरल्स। अभी कोरल्स मीन्स व्हाट? कोरल्स आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन ओशन, कीप इन माइंड। कोरल्स मीन्स व्हाट? जो पानी में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप एनिमल्स होते हैं, उससे वो लक्षद्वीप आइलैंड फॉर्म हुआ है, इसलिए उसको एटॉल आइलैंड बोलते हैं। अंडरस्टूड? यानी माइक्रोस्कोप एनिमल्स से वो फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ पे फिगर में दिखा रही हूँ मैं आपको, कि ये माइक्रोस्कोप एनिमल्स है, इससे वो आइलैंड यानी एक साथ इट इज़ नॉट सो इजी एंड फास्ट प्रोसेस। ये फॉर्म होने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से, आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं ये एनिमल्स, इससे वो लक्षद्वीप आइलैंड फॉर्म हुआ है, और इसके लिए उसको एटॉल आइलैंड्स बोलते हैं। ध्यान में रखना है। ये देखो 17 पेज नंबर पे है आपका, ये रीडिंग देख कर लेना, लेकिन ये पॉइंट्स देख लेना। तो इसको कैरोल और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन ओशन। नाउ अंडमान निकोबार देखो, इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल में, दे आर बिगेस्ट। ये जो दिखा रही हूँ मैं वो बैरन आइलैंड का है। इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोस्ट न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। बहुत नंबर्स में छोटे छोटे आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप्स आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड्स, वोल्केनोज होते हैं, और बैरन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन लोकेटेड हियर। देखो बैरन आइलैंड में है जो एक्टिव है, आपको पता है एक्टिव, डॉर्मेंट, ऐसे वोल्केनो के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। तो ये एक्टिव वोल्केनो है, क्योंकि बार बार वहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होता है, और उससे जो फॉर्म क्रिएट होता है, लैंड पोर्शन क्रिएट होता है, उसको बैरन आइलैंड बोलते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वर्ल्ड की बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एंड ट्रीज। फ्लोरा एंड फौना मीन्स एनिमल्स एंड ट्रीज। तो समझ में आया आपको आइलैंड के बारे में और इंडिया का फिजियोग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्राज़ील का फिजियोग्राफ बताऊंगी। नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना है। गुड लक।